Just, just 1 second. This questionnaire. I'll show the questionnaire. Yeah. Up to which question we had done? Question 34. Yeah. I'll just share my screen. Yeah. Is it visible? Loading now. Yeah, now it's visible. Okay. Yeah. So 34 is done. Okay. 34 is done, or 34 we are about to discuss? Start from 34. Yes. Okay, we'll start from 34. Okay, so who is Lord Shiva and what is his role? Anyone would like to mention? Very special question. Lord Bhagwan. Shiva is in charge of material world. Okay. Prabhu, Lord Shiva is the mercy incarnation of Lord Vishnu to take care of the fallen jivas. Yes. So when Lord Vishnu wants to directly, take care in the material world of the jivas, because nothing can work without the Supreme Lord. So he has to be everywhere. So Lord Shiva is when Lord Vishnu comes to the material world and takes the in chargeship of the whole material world. But Lord Shiva is not a normal living entity. That is very important. Among the five tattvas, Jiva tattva is separate, Vishnu tattva is separate, but Lord Shiva is in between, called as Shambhu tattva. So he is not Vishnu, and he is not normal living entity also. He is in between, and he has a special function of taking care of uh, people. And the difference is mentioned in the Brahma Samhita, uh, chapter 5, text number 45, where I was telling last time the milk example. So from milk you can form curd, but from curd you cannot form milk. So Lord Shiva is coming from Vishnu, but again from Lord Shiva you cannot get back Vishnu. So it's just a transformation of the same milk, which has now become curd. Similarly, it's a transformation of Vishnu who is appearing like Lord Shiva. And his specific role is he gives mercy to those who are most fallen, and nobody wants to approach them. Lord Shiva approaches such most degraded living entities in consciousness in trying to upgrade them towards Krishna. Okay, 35. Is Krishna a Hindu god? If God is one, then why there are so many religions? Very good question. So we have to start with the definition of God. What is the definition of God? Many times Shintapu has said. Generator, operator, and destroyer, I think. It's I remember. God. Yeah, so this is one short form for remembering. But from scriptures, what is the definition of Bhagavan? किसको भगवान बोला जाता है स्क्रिप्चर में?
Prabhu have six qualities: having full fame, wealth, opulence, knowledge, um, 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 appearance, and Yeah, renunciation. yeah. Mm. हाँ, That is. 6 ऐश्वर्य होते हैं, षड ऐश्वर्य, ऑप्युलेंस। जिसके पास अनलिमिटेड है उसको भगवान बोल सकते हैं, भगवान। भग मीन्स ऑपुलेंस, वान मतलब जिसके पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में है। जैसे बोलते हैं ना वीर्यवान, जो बहुत ही बलवान, जिसके पास बल है बहुत सारा, वैसे भगवान मीन्स जिसके पास भग या फिर ऐश्वर्य है। एंड वो ऐश्वर्य क्या क्या है? ब्यूटी, अनलिमिटेड ब्यूटी, अनलिमिटेड वेल्थ, unlimited knowledge, unlimited fame, and unlimited renunciation. So I think and unlimited strength also. तो ये 6 चीज हम देखते हैं। एक्चुअली भगवान के जो क्वालिटीज है वही इस दुनिया के लोगों के में हमें दिखाई देते हैं थोड़े थोड़े। कोई बहुत सुंदर है, थोड़ा सुंदर है तो पैसा नहीं है। कोई पैसा है तो स्ट्रेंथ नहीं है, स्ट्रेंथ है तो नॉलेज नहीं है, नॉलेज है तो सुंदर नहीं है। देखे आपने, जैसे कुछ कुछ होते हैं साइंटिस्ट, बहुत नॉलेज होता है, बहुत दिमाग होता है, बट सुंदर नहीं दिखते हैं। तो सबके पास सब कुछ थोड़ा थोड़ा है, वेरी माइन्यूट कॉन्ट्रीब्यूट। कृष्णा possesses these qualities infinitely, and that is why Krishna is God. And the meaning of the word is also that. Prabhupada says कृष्णा वर्ड का मतलब क्या है, कौन बताएगा? कृष्णा इस वर्ड का मतलब क्या है? All attractive. ऑल अट्रैक्टिव, सर्व आकर्षति इति कृष्ण। अब कोई चीज कब अट्रैक्ट करती है? जनरली हमको तो ऑपुलेंस और स्पेशल क्वालिटीज ही अट्रैक्ट करते हैं ना। So, कृष्णा का नाम इसलिए कृष्ण है क्योंकि वो सबको अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ हिज अनलिमिटेड क्वालिटीज। तो इतने सारे रिलीजन क्यों हैं? इफ गॉड इज वन, व्हाई देयर आर सो मेनी रिलीजियंस? नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। These are the different part to go to the God Dham. ओके, डिफरेंट पाथ। ओके, एनीथिंग एल्स? इतने सारे धर्म क्यों हैं, रिलीजन क्यों हैं? दिस बेसिक क्वेश्चन। Yeah. So Prabhu, maybe because no one have that right knowledge, or no one knows the that Krishna is the God. सबके पास हर एक अलग अलग वर्जन है, मतलब जैसे वो ब्रिंग अप हुए हैं, ब्रॉट अप हुए हैं, तो उनके पास हर अलग अलग वर्जन होते हैं। तो किसी को ये नहीं पता कि कृष्णा ही गॉड है, तो मतलब इसीलिए। बाकी सब रिलीजन सब गलत है, जिनको पता नहीं है वो सब मूर्ख हैं, सब क्या कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। ये तो है Because, ना, सो मेनी रिलीजन्स आर देयर विच आर yeah, Galat. प्रोपाउंडेड बाय कृष्णा ओनली। Yeah, yeah. Yeah. कृष्णा इन डिफरेंट फॉर्म्स प्रोपाउंड्स डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, वो भगवान ने ही किया है वो सिस्टम। Mhm. तो क्यों ये सिस्टम बनाया गया है? नहीं, भगवान ने तो नहीं बनाया प्रभु वो सिस्टम। आई थिंक दिस सिस्टम हैज बीन क्रिएटेड बाय द क्या कहते हैं जीवात्मास, राइट, बेस्ड ऑन द नॉलेज आई थिंक दे हैव, यस। and whatever they have gathered I think from their surrounding ये क्या है because बेटा तुझे? हाँ यस, कुछ बोल रहे हैं क्या? एक एक करके बोल सकते हैं। हाँ यस विक्रम प्रभु। so I was I think saying this because this is the knowledge I think which they have, right, and basis of the knowledge I think they are trying and answering the question I think why we are in this world and who has created us, right, and based of that the knowledge they have come up with this different streams, right, which या which helping people also and also trying and ultimately I think reaching out to the goal. So Yeah. let's see. So sometimes God directly comes to propound religion, just like Lord Buddha came Yeah. personally. Is similarly Krishna comes. Sometimes he sends his representatives, like Jesus Christ. Jesus Christ is a actually representative of God. Prabhupada bolte hain, because he tried to propagate the mission of the Lord. So whatever be the case, even sometimes God directly comes or he sends his messengers and servants. But the question is why different paths are given? Why not same path? Same thing again and again they can tell, na? Why the methodology and everything is different? How it helps? Actually,
कृष्णा ऑलवेज गिव्स फ्री विल, दिस इज द फर्स्ट थिंग वी शुड अंडरस्टैंड। बहुत लोग बोलते हैं कि वैदिक स्क्रिप्चर जो है बहुत कंफ्यूजिंग है, अरे देवता के बारे में बताया, ज्ञान योगा के बारे में बताया, कर्म योगा के बारे में बताया, भक्ति योगा के बारे में बताया, अष्टांग योगा, इतना क्या कंफ्यूजन कर दिया है। एंड दिस इज अदर रिलीजन्स आर सो नहीं, जस्ट गो एंड गॉड गिव अस आवर डेली ब्रेड, खत्म हो गया। सिंपल, सेम प्रेयर फॉर ऑल क्रिश्चियंस, करेक्ट। एंड इन हिंदू रिलीजन देर इज सो मच confusion. So first thing we should know that there is nothing called this word हिंदू। हिंदू बोल के कोई वर्ड है नहीं किसी स्क्रिप्चर में, आप किसी भी शास्त्र में दिखा दीजिए कि लिखा हुआ हिंदू। अगर हिंदू 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 इतना बोलते हैं तो किसी तो किताब में होना चाहिए ना हम लोग की, कि हिंदू लिखा हुआ है, भगवान बोल रहे हैं हम लोग हिंदू। हिंदू नहीं होता है, हिंदू बनाया हुआ वर्ड है, एक्चुअली सनातन धर्म है। सनातन धर्म मीन्स इटर्नल, सनातन मतलब जो इसका बिगिनिंग नहीं है, इस डेट पे ये धर्म बनाया गया, ऐसा नहीं है। तो जो इटर्नल जॉब डिस्क्रिप्शन बोलते हैं ना, प्रभुपाद बोलते हैं रिलीजियन मतलब लॉज ऑफ गॉड, तो इटर्नल लॉज ऑफ गॉड जो भगवान ने बनाए हुए हैं उसको सनातन धर्म बोलते हैं। अब सनातन धर्म का ब्यूटी क्या है, बहुत लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, बट हमको ब्यूटी समझना चाहिए कि वैदिक स्क्रिप्चर्स आर लाइक मदर। मदर का कोई बच्चा बदमाश होता है, कोई बच्चा इंटेलिजेंट होता है, कोई शरारती होता है, तो मम्मी क्या उठा के फेंक देती है क्या जो बदमाश होता है? नहीं, उसको अलग से उसको डील करने के लिए सिस्टम है। वो थोड़ा 1 घंटा पढ़ेगा, फिर 1 घंटा बदमाशी करेगा। और जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है उसको पढ़ना ही अच्छा लगता है तो वो पढ़ाई करेगा 4 घंटा। और कोई बच्चा है उसको भूख बहुत लगता है, तब मम्मी उसको हर 2 घंटे में खाना दे देती है। और कोई बच्चा है उसको एक दिन में 2 ही बार भूख लगता है, तो 2 ही बार खाना दे, तो मदर सबका ख्याल रखती है। सिमिलरली कृष्णा, ऑल लिविंग एंटिटीज वी हैव सम इंडिविजुअल डिजायर सेट्स। हमको ये करना है, मेटेरियल वर्ल्ड में ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो उस हिसाब से भगवान ने रिलीजियस सिस्टम बनाया है कि जो जिस स्तर पे है, विच एवर लेवल अ पर्सन इज, दैट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी ही कैन फॉलो, लाइक सरेंडरिंग टू डेमी गॉड्स। आपको कुछ भौतिक इच्छा है, कुछ चाहिए, इंजॉय करना है, कुछ पैसा चाहिए, तो उसका सिस्टम है, आप गणेश जी का पूजा करो, लक्ष्मी जी का पूजा करो, प्रॉपरली करो, वो देंगे आपको। हाँ, तो कृष्णा डजंट नेगेट a person's desire to get some money, get some fame, get some success, whatever, whether it be material. And but everybody doesn't want. Some people want spiritual realization. So Krishna has created the path of jnana. इनको ज्ञान योगा चाहिए. Some people want to serve and love God directly. So Krishna has created the path of bhakti. But we cannot say everything is equal. That is good. जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे कि they are going to God and telling God, give us our daily bread. Yes, we are very thankful. So but प्रभुपाद जी ये नहीं बोलते हैं तो प्रेयर खराब। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि even if you don't ask, the elephant is not asking for bread, the giraffe is not asking for bread, but still Krishna is giving bread. So Prabhupada बोलते हैं don't do this bread supply business with God, that give us our bread, give us our bread. जैसे अभी सपोज किसी का बच्चा है, जैसे विक्रम प्रभु का लड़का है, वो हर दिन आके अगर विक्रम प्रभु को बोले आज खाना दे देंगे ना पापा, आज खाने डिनर का अरेंजमेंट आज होगा ना, हाँ बेटा आज अरेंजमेंट तो कर देंगे। फिर अगले दिन फिर आके बोलेगा लंच का जुगाड़ कर देंगे ना, कि मतलब दिक्कत तो नहीं होगा, मैं बस चेक कर रहा हूँ। तो कैसा लगेगा, अरे इतने साल से इसको मैं पालन पोषण कर रहा हूँ, फिर भी आके क्या बोलता है कि आज तो खाना मिलेगा ना। समझ आ रहा है? But probably better you say that thank you for giving so much bread that you have given from so many years. And I know you will definitely give bread. So proper, but probably still it is good. At least he is going in front of God and telling, give us our daily bread. But we cannot say that that is the ultimate prayer. That is maybe one beginning level of telling thank you for giving bread. But Prabhupada says this is not Sanatan Dharma. In Sanatan Dharma, we are not having this bread supply business with God. Why I am thankful to Krishna? Because he gives me bread every day. So that is one level. So we have to understand there are different levels and categories of people with different sets of desires and the level of consciousness. And according to that, the scriptures provide relevant path for them to show some kind of surrender to God. Everybody cannot show full surrender to God. जैसे कोई इस्कॉन वाले पागल हैं, से 16 माला करते हैं। Nobody is asking you to chant 16 rounds. You chant one round. You can chant round. At least आप ऑफिस जाने से पहले एक बार कृष्ण को प्रणाम करो. कैन यू गिव वन फ्लावर टू कृष्ण? प्रभु जी मैं मंदिर नहीं आ सकता, इतना बड़ा जन्माष्टमी 3 घंटा, ठीक है, यू जन्माष्टमी यू गिव वन फ्लावर टू कृष्ण.
one fruit to Krishna. Do something. So whatever people can do, accordingly Krishna has provided, because Krishna doesn't want to force. हाँ? मेरा अगर भक्ति करना है, सरेंडर करना, ये एकमात्र 16 माला अगर नहीं किया तो निकल जाओ यहां से, कोई जगह नहीं है तुम्हारी इस है ना इसमें, ऐसा नहीं है. बट along with that we should understand everything is not equal. सब बराबर है, जो हिंदू कर रहे हैं बराबर है, जो मुस्लिम कर रहे हैं बराबर है, जो क्रिश्चियन कर रहे हैं, सब कुछ बराबर नहीं है, सब में अलग है. इवन इन देयर ओन रिलीजन सम पीपल आर मोर फोकस्ड, मोर प्रैक्टिस्ड. So like that. Is it clear? Different religions are there to facilitate the different levels of people trying to approach God. Okay, but the purpose is same. सब धीरे धीरे भगवान को शेल्टर लेना सिखा रहे हैं. कुछ चाहिए अपने से ट्राई करने से अच्छा एंडेवर के साथ थोड़ा भगवान को प्रे भी करो. यू आर अंडरस्टैंडिंग ना? सिस्टमैटिक सरेंडर टू द लॉज ऑफ गॉड, दैट इज रिलीजियस सिस्टम. ओके, इज गॉड सम लाइट कॉल्ड ब्रह्म ज्योति? व्हाट इज ब्रह्म ज्योति? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं बाहर के. भगवान लाइट है क्या? भगवान लाइट नहीं है, बट लाइक हिज ब्रह्म ज्योति इज पार्ट ऑफ हिज बॉडी, और हिज लाइक part of his, but it's not the complete one. Brahma Jyoti is not the complete one. Prabhuji gave the one example, like if some train comes, then first of all light comes of that train, then after that real train will come up. So like this. Brahma या Jyoti itself is not a god. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो क्या है ब्रह्म ज्योति? भगवान नहीं है तो क्या है वो? भगवान का क्या है वो? इट्स द एफल्जेंस ऑफ कृष्णा's बॉडी. Yeah, effulgence. Sorry, I am भगवान के forgetting the word. शरीर की आभा है. आभा बोलते हैं ना इसे. कृष्णा's body is radiating energy. तो that radiation of energy from Krishna's body, just like sun है, sun एक planet है और उसका एनर्जी है, वो रेडिएशन ऑफ दैट एनर्जी इज ब्रह्म ज्योति. एंड भगवान खुद भगवत गीता चैप्टर नंबर 14 में इसका वर्स बताते हैं, टेक्स्ट नंबर 27 में, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, कि मैंने ब्रह्म ज्योति की स्थापना की है. तो अगर किसी ने किसी चीज की स्थापना की है, वो खुद से वो कैसे हो सकता है? मैंने एक बिल्डिंग बनाया है तो मैं थोड़ी बिल्डिंग हूं, वो तो मैंने बनाया है. सिमिलरली भगवान बोलते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, मैंने ब्रह्म ज्योति की स्थापना. इट इज द इफल्जेंस कमिंग फ्रॉम द बॉडी. सो भगवान तो श्रीमद् भागवतम में ये एक वर्स आता है कि जो रियलाइजेशन है भगवान का, वो 3 स्टेज में होता है. आप लोगों को मेरा ये दिख रहा है क्या स्क्रीन, दूसरा वाला? नहीं प्रभु. ओके ओके, आई थिंक मैंने वो पर्टिकुलर ही शेयर किया है. मैं स्क्रीन शेयर करता हूं. अभी दिखता है? यस प्रभु. ओके, सॉरी. ब्रह्मेति ब्रह्मेति परमात्मेति. हाँ ये है. तो ये बहुत प्रभुपाद जी का बहुत फेवरेट श्लोका था, प्रभुपाद जी बार बार बोलते थे. तो ये भागवतम के फर्स्ट कैंटो टेक्स्ट नंबर 2 टेक्स्ट नंबर 11. तो ओके, मेरे पीछे कोई बोल सकते हैं. वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ञानम् अद्वयम् यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते. भगवान इति शब्दते. तो देखिए बता रहे हैं, लर्नेड ट्रांसेंडेंटलिस्ट who know the absolute one second, who know the absolute truth call this non-dual substance as Brahman, परमात्मा और भगवान. तो ये 3 स्टेज में, जैसे प्रभुपाद जी स्पेसिफिक एग्जांपल बताते हैं इस केस में किसका, सन का. जैसे सन के 3 चीज हो गए, एक हो गया सन रेज, सन लाइट. सेकंड क्या हो गया, सन प्लैनेट.
ओके। एंड थर्ड क्या हो गया, सन प्लैनेट के अंदर एक्चुअली हमको दिखता नहीं, हम नहीं देख सकते, बट देर इज अ पर्सन कॉल्ड ए सन गॉड, जिसे सूर्य देव बोलते हैं, जो ये सब कुछ चला रहे हैं, जिसके वजह से हमको दिख रहा है। तो सिमिलरली प्रभुपाद जी बोलते हैं कि देर इज एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, द एफल्जेंस ऑफ द लॉर्ड, इसको ब्रह्मन रियलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है परमात्मा रियलाइजेशन, जिस रूप में भगवान इंडिविजुअल लोकलाइज्ड परमात्मा के रूप में सबके हृदय में बैठे हुए हैं। एंड थर्ड इज द भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट कृष्ण। तो इस तीन स्टेज में भगवान के जितने भी आप देखेंगे सनातन धर्म में, जितने भी प्रोसेसेस हैं, कर्म योगा हो, अष्टांग योगा हो, जो भी हो, वो ये तीन में से किसी एक स्टेज पे उनका मेनली फोकस रहता है। एंड भक्ति योगा इज मेनली अबाउट सर्विंग द भगवान फीचर ऑफ द लॉर्ड। So it's a feature of the same God. Is it clear? Okay. So we will go to 37 now. How can infinite God have a finite form? Technical question. भगवान अनंत हैं, तो ऐसे दिखते क्यों हैं ऐसे? प्रभु जी, हमारे मंदिर में भगवान जो हैं 4-4.5 फुट के हैं। 4.5 फुट के कैसे हो गए भगवान? That one is the Vigrah of Bhagwan. Okay. और कुछ, मतलब सिंपल क्वेश्चन है, अगर भगवान अनंत हैं तो लिमिट में कैसे आ सकते हैं? कोई भी चीज, उनका फॉर्म, उनका फोटो कैसे बोल सकते हैं? कोई व्यक्ति बोले भगवान व्यक्ति है, तो व्यक्ति का तो हाइट वेट सब होता है ना, थोड़ा एक फॉर्म होता है, तो फॉर्म हो गया तो लिमिट हो गया ना भगवान। तो भगवान निराकारवादी जब लोग भी ये बोलते हैं। यस भगवान यस। जब भी इसका मतलब ये है कि प्रभु जी मुझे क्या कहते हैं कि भगवान जब भी अवतार लेते हैं, या फिर जैसे कृष्ण के भगवान कृष्ण में अवतार लिए या राम अवतार लिए, तो वो क्या कहते हैं अनंत होते हुए भी अंत क्या कहते हैं उनका भी फाइनाइट रूप में वो अवतार लिए। और जब भी कोई मतलब ऐसा कुछ अत्याचार हुआ या उसको संहार करने के लिए अवतार लिए, तो उसको फाइनाइट रूप में अवतार लिए। हाँ, तो लेकिन भगवान निराकार हैं वैसे। हाँ, भगवान निराकार है, बट जब भी ऐसा होता है तो भगवान अवतार लेते हैं, तो उसमें नहीं, फाइनाइट रूप में ही आते हैं फिर। अरे तो पूरा गड़बड़ हो गया। तब भगवान निराकार नहीं है, भगवान का आकार है। यही तो फंडामेंटल टीचिंग है भगवत गीता का, जो सबको गलत पता है। भगवान निराकार नहीं है, भगवान का आकार है, लेकिन भगवान का आकार आपके और मेरे आकार की तरह नहीं है। समझ आ रहा है आपको? जब भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप दर्शन दिया था, तो वो आकार था कि नहीं था? देख रहा था ना, चेहरा है, ये है। और अर्जुन खुद देख सकता था। भगवान क्या गीता में बोलते हैं, अभी मैं तुमको स्पेशल दृष्टि देता हूं जिससे तुम मेरे को देख पाएगा ओरिजिनल में क्या है। एंड विश्व रूप दर्शन में अर्जुन बोलते हैं, मैं लाखों करोड़ों अरबों सिर देख पा रहा हूं। हाँ, अनंत अनंत भगवान के रूप देख पा रहा हूँ, सिर देख पा रहा हूँ, करोड़ों हाथ हैं, करोड़ों मतलब करोड़ जैसे नंबर दिख ही नहीं रहा है कितने बड़े हैं। सो कृष्णा ऑल्सो हैज अ फॉर्म, बट कृष्ण का जो फॉर्म है वो आध्यात्मिक है, और इस चर्म चक्षु से आप कृष्ण का आध्यात्मिक शरीर नहीं देख सकते हैं। ये प्रॉब्लम है। बट देखना तो है ना, भगवान के साथ तो रिश्ता बनाना है, कैसे बनाएंगे? सो मर्सीफुली भगवान कृपा करके इस फॉर्म में आते हैं, ताकि आप इस चर्म चक्षु से देख सकें। तो कोई बोलता है जो विग्रह है भगवान की मूर्ति, भगवान है क्या? भगवान एक्सेप्ट करते हैं उस फॉर्म में आपको दर्शन देने के लिए। सो भगवान निराकार नहीं है, भगवान का आकार है। भगवान का आकार कैसा है? हमारे आकार की तरह नहीं है। जैसे हमारा आकार कैसा है, देखो पसीना आ जाता है, नहाना पड़ता है, और सुबह सुबह एक दिन ब्रश मत करो तो कैसे मुंह से बस बदबू देने लगता है, और बाल कंघी मत करो एक हफ्ते तक कैसे हो जाता है। तो भगवान का केस ऐसा नहीं है कि धोया नहीं एक हफ्ते तो कैसा हो जाएगा, शैम्पू लगाना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम यह है कि निराकारवादी जो हैं या मायावादी जो हैं, वो देखते हैं कि ये शरीर बहुत कष्ट देता है, कुछ खून निकल जाता है, पसीना आ जाता है, बदबू दे देता है, समझ आ रहा है, बहुत कष्ट देता है ये शरीर। तो वो सोचते हैं कि जब भगवान है, तो भगवान का भी अगर शरीर होगा तो कष्ट देगा ना। अब भगवान का शरीर कष्ट कैसे दे सकता है? तो दे थिंक बॉडी मीन्स ट्रबल।
And it is a fact, material body means trouble, but they cannot digest the fact that what is spiritual body. And कौन बताएगा, किस वर्ष में इस चीज को बताया गया है कि भगवान का स्पिरिचुअल बॉडी है? ब्रह्म संहिता का फर्स्ट वर्ष। भगवान का शरीर किस चीज का बना है? मटेरियल क्या है प्रभु जी? हमारा शरीर जो है खून से बना है, हड्डी से बना है। भगवान का शरीर किस चीज से बना है? सच्चिदानंद स्वरूप। हाँ, तो भगवान बता, ईश्वर परमा कृष्ण हम्म। सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। सच्चिद आनंद, तीन चीज से भगवान का शरीर बना है, सत चित और आनंद से। अब वो क्या है प्रभु जी? आनंद क्या होता है? उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? वो मैटर के लिए है। जो चीजें मैटर हैं, जो भौतिक है, उसके लिए आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वो स्पिरिचुअल है। आपको एक, हमको एक्सपीरियंस ही नहीं है कि आध्यात्मिक चीज क्या है। हम तो खुद ही को नहीं देख सकते, भगवान को क्या देखेंगे? हम खुद जीवात्मा है और बोलते हैं कि अरे ये शांतनु है। शांतनु नहीं है, ये शांतनु का हाथ है। शांतनु तो जीवात्मा है, बहुत छोटा सा। खुद को नहीं देख सकते, भगवान को क्या देखेंगे? तो भगवान निराकार नहीं है। भगवान का पूर्ण पुरुषोत्तम बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक आकार है। एंड जितना हम भक्ति में एडवांस करेंगे तो भगवान खुद हमको वो दृष्टि देंगे कि हम उनका भी आध्यात्मिक शरीर देख पाएंगे, उनको देख पाएंगे, और खुद का भी आध्यात्मिक शरीर देख पाएंगे। इज इट क्लियर? तो फाइनाइट फॉर्म में भगवान क्यों आते हैं? ताकि हम उनको देख सके। जैसे एक वर्ष आता है, मेरे को पुराण का नाम याद नहीं आ रहा है, पद्म पुराण में आता है या स्कंद पुराण में आता है। तो उसमें जगन्नाथ जी के बारे में बताया गया है, रथे च बामन दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते। रथ में जिसने एक बार बामन को देख लिया। बामन समझते हैं? बामन किसको बोलते हैं? कौन बताएगा? ब्राह्मण। Who have small body। हाँ, छोटा Lord। छोटा 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 है ब्राह्मण। शरीर में, उसको वामन बोलते हैं। तो बोल रहे रथे च बामन दृष्टवा, जिसने रथ पे उस बामन को बैठे हुए देख लिया, पुनर्जन्म न विद्यते, उसको इस जन्म फिर कभी नहीं लेना पड़े। तो बामन क्यों बोल रहे हैं जगन्नाथ जी को? रथ पे बैठे हैं तो एक्चुअली जगन्नाथ जी बहुत बड़े हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि दुनिया का किसी रथ में आप जगन्नाथ जी को बैठा नहीं सकते। बट बिकॉज हम बैठाना चाहते हैं, भगवान का कुछ सेवा करना चाहते हैं, तो भगवान बामन रूप में आके रथ पे बैठते हैं कि चलो इतना छोटा रहूंगा तो बैठा तो पाएगा, कुछ रथ को खींच तो पाएगा। तो इसीलिए भगवान का जो स्वरूप है वो चिन्मय स्वरूप है, वो हमारी तरह भौतिक स्वरूप है। और भगवान का जो आकार है, हमको ऐसे नहीं सोचना चाहिए भगवान निराकार है और जब राम जी के रूप में आते हैं तो एक शरीर, भौतिक शरीर लेके आते हैं। नहीं, भौतिक शरीर नहीं है। राम जी का शरीर जो है परम चिन्मय है। कृष्णा डजेंट टेक मटीरियल बॉडीज व्हेन ही कम्स टू, भगवान का शरीर आध्यात्मिक ही रहता है हमेशा। ठीक है, समझ आया ना? जो एक प्रभु जी जो बोल रहे थे, भगवान निराकार नहीं है, निराकार इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। और भगवान खुद बोलते हैं कि भगवान का स्वरूप है भगवत गीता में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ओके, व्हाट आर द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ रियलाइजिंग गॉड? ये हमने श्रीमद् भागवतम चैप्टर 1 टेक्स्ट नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 कैंटो 1 चैप्टर 2 टेक्स्ट नंबर 11 में हमने देखा। भगवान, परमात्मा और ब्रह्मन। ठीक है, तो अभी देखिए एक्चुअली इसी तरह का कॉन्सेप्ट, सेम चीज मायावादी और निराकारवादी बोलते हैं। वो बोलते हैं एक्चुअली ब्रह्मन है, निराकार है। उधर से भगवान जब, निराकार भगवान जब सत्व गुण को टच करते हैं तो विष्णु बन के आ जाते हैं। निराकार भगवान जब तमोगुण को टच करते हैं तो शिव जी की तरह आ जाते हैं। निराकार भगवान जब रजोगुण को से प्रभाव में आते हैं तो ब्रह्मा जी बन जाते हैं। बट भगवान क्लियरली बोलते हैं, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम। मेरे अध्यक्षता में प्रकृति चल रहा है, ये भौतिक जगत। तो भगवान उसके अंदर कैसे आ सकते हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मेरे वजह से सब कुछ चल रहा है, तो जिसके वजह से चल रहा है वो उसके कंट्रोल में कैसे आ सकता है कि नहीं? अब जैसे कोई सीईओ है, उसके वजह से कंपनी चल रहा है, तो वो एम्प्लॉय के कंट्रोल में थोड़ी आ सकता है। करेक्ट? तो लाइक दैट। ओके, 39th, विच इज सुपीरियर ऑन ब्रह्म ज्योति और वर्शिपिंग द सुप्रीम लॉर्ड विद डिवोशन? कौन सा है सुपीरियर फॉर्म?
Worshipping the Supreme Lord with devotion. वर्शिपिंग द सुप्रीम लॉर्ड विद डिवोशन। तो 12th तो चैप्टर में अर्जुन ये पूछता है कि भगवान आप बोल रहे आप ही का तो दोनों फीचर है कि नहीं? ब्रह्म ज्योति फीचर भी है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, कौन सा? तो कृष्ण वहां पे उत्तर देते हैं कि वर्शिपिंग मी विद डिवोशन इज सुपीरियर। प्लस वहां भगवान, और भी आप 12th चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां भगवान ये भी मेंशन करते हैं कि जो इम्पर्सनल पाथ के पीछे जाते हैं, ये ब्रह्मन या निराकार जो पथ पे जाते हैं, बहुत कष्ट सहना पड़ता है उनको। इट्स वेरी डिफिकल्ट to serve and please the Lord if you are on the impersonal way. But Krishna says superior and easier both is कि हम पर्सनल सर्विस से भगवान का सेवा करें। तो आप भगवत गीता चैप्टर नंबर 12 टेक्स्ट नंबर 5 में ये चीज पढ़ सकते हैं। क्लेशो धिक्कत तरस तेषाम। क्लेश मतलब समझते हैं, घर में क्लेश हो रहा है मतलब झमेला, टेंशन। तो भगवान बोलते हैं कि जो ब्रह्मन पथ पे चलते हैं वो क्लेशोधिक तरसते शाम, उनके बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत एंजाइटी रहता है, बिकॉज दिखता ही नहीं है ना भगवान, ना दिखते हैं ना समझ आते हैं, कुछ तो है, वो कॉन्सेप्ट है सिर्फ, इट्स नॉट अ रियलिटी। बहुत क्लेश होता है जो इस पथ से भगवान को समझना चाहते हैं। तो इसीलिए डिवोशन टू सुप्रीम लॉर्ड, भगवान का सेवा करना इज सुपीरियर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो लोग बोलते हैं कि जब भगवान का डोर लगेगा तो भगवान के पास जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। इवन कौन भगवान के पास जाता है ये भी भगवान ने भगवत गीता में बताया है। हु आर द 4 क्लासेस ऑफ पीपल हु अप्रोच कृष्णा? किस तरह के लोग भगवान के पास जाते हैं? पहला पहला प्रभु आई थिंक जो कुछ मटेरियल थिंग्स मांगने के लिए जाते हैं। ओके। दूसरा आई थिंक जो अपने एग्जिस्टेंस को जानने के लिए जाते हैं। एग्जिस्टेंस का इनक्विसिटिवनेस, इंक्विजिटिव, इनक्विसिटिव जो रहता है, करेक्ट। लोग जो होते हैं। तीसरा जो भगवान को सेवा करने के लिए जाते हैं। ओके, नहीं सेवा सेवा नहीं होगा। एग्जैक्टली। द 4 डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थो, हाँ यस यस यस। Artho means those who are in sadness, distress, or depression. Arthartho is those who want to impress Krishna to increase their wealth. And third is Jigyasu. Jigyasu is those who are inquisitive, that whether God exists or not. And the fourth is Gyani, means those who are the superior, means the highest devotee, those who know the knowledge but still search the absolute truth. For example, Ambarish Maharaj. And the sloka is 16 and 17. Where 16. Chapter 7, sloka number 16. यस। तो आर्थो मतलब जो बहुत डिस्ट्रेस में है। अर्थार्थी, विद्यार्थी का मतलब क्या होता है? विद्या को अर्थी, मतलब जो विद्या पाना चाहता है। वैसे अर्थार्थी, अर्थ मतलब बोलते हैं ना कुछ अर्थ, वेल्थ, मनी, ऑपुलेंस, तो अर्थार्थी। तो आर्थो मतलब जो डिस्ट्रेस में है, अर्थार्थी मतलब जिसको कुछ भौतिक चीजें चाहिए। ये 2 लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? जिज्ञासु मतलब क्या चल रहा है। जैसे मैं तो पर्सनली मैं जिज्ञासु था, इसीलिए मैं भगवान के पे, ये इतना खुश क्यों रहते हैं हरे कृष्ण वाले लोग, ये नाचते क्यों रहते हैं हमेशा, इतना सक्सेसफुल आईआईटीएन सब होने के बाद भी ये भगवान का नाम क्यों ले रहे हैं, ये भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, मेरे को ऐसा ऐसे क्यों मतलब है कि ना इतने लोग भगवत गीता पे कमेंट्री लिख रहे हैं और इतने इंटेलिजेंट लोग भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं जिज्ञासु। उसको पता नहीं है, सोच रहा है क्या है कि थोड़ा देखता हूँ, पता करता हूँ, जाके देखूं तो एक बार, जैसे मैं सोचा था जाके देखूं तो एक बार क्या होता है हरे कृष्णा में, क्या प्रवचन में बताते हैं, क्या ना क्यों चैंटिंग करने होता है, लाइक दैट। एंड नेक्स्ट इज ज्ञानी। ज्ञानी जिसको भगवान ही चाहिए जीवन में। जैसे मेरे को भगवान नहीं चाहिए थे स्टार्टिंग में, मेरे को बस जानना था क्या चलता है इधर, देखते हैं। फिर धीरे धीरे हमको इंटरेस्ट आया। बट कुछ लोग ज्ञानी होते हैं जो भगवान को ही खोज रहे हैं, परम सत्य खोज रहे हैं जीवन में। तो वो जो है भगवान बोलते हैं कि वो सबसे सर्वोपरि हैं। तो ये भगवत गीता चैप्टर 7 टेक्स्ट नंबर 16 में आता है। और टेक्स्ट नंबर 17 में बोलते हैं कि उसमें से तेषाम
ज्ञानी नित्य युक्त, जो नित्य युक्त भगवान के साथ परमानेंटली कनेक्टेड ज्ञानी है वो सबसे सुपीरियर है। ओके, वेरी नाइस। 41, व्हाट इज अचिंत्य भेदा भेद फिलोसफी? ये हमारे पूरे ना फाउंडेशन है हमारे फिलोसफी का। ये हमारा फिलोसफी क्या है, उसको अचिंत्य भेदाभेद बोलते हैं। क्या है वो? भेद अभेद, साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस, एक साथ। और उसका एग्जाम्पल भी आप बता सकते हैं। देखिए, तीन चीज है, अभी अच्छी से इसको समझिए। ये आंसर मेरे को लगता है अभी तक के डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीन चीज हो गया, एक हो गया लिविंग एंटिटी जीव, एक हो गया भगवान सुप्रीम कंट्रोलर, और तीसरा हो गया जिसके थ्रू कंट्रोल करते हैं, वो क्या है? प्रकृति। तो जीव, प्रकृति और परमेश्वर या भगवान, लिविंग एंटिटी, मटेरियल नेचर एंड गॉड। सो नाउ अगर हम देखें गॉड और मटेरियल नेचर को, तो गॉड और मटेरियल नेचर में भेद क्या है? कि भगवान बताते हैं कि आई स्टे अलूफ फ्रॉम मटेरियल नेचर एंड रन इट थ्रू द फोरम ऑफ डेमी गॉड्स एंड माई एनर्जीज। भूमिर अपो नलो वायु खम मनोबुद्धि रेवच भिन्न प्रकृति अष्टडा। वो स्पेसिफिक वर्ड भगवान वो बोलते हैं भगवद गीता चैप्टर 7 टेक्स्ट नंबर 4 में, भिन्न प्रकृति, ये मेरी सेपरेटेड एनर्जी है जिससे मैं मटेरियल वर्ल्ड को चला रहा हूं। तो कृष्णा इज भेद, भेद मतलब डिफरेंस फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड। सिमिलरली भगवान बोलते हैं मायाध्यक्षेन प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में ये भौतिक प्रकृति चल रही है। तो भगवान और भौतिक प्रकृति में अंतर है, ये दो वर्ष है। तो ये मायाध्यक्षेन प्रकृति है भगवद गीता चैप्टर नंबर 9 टेक्स्ट नंबर 10 में। So Krishna is telling, I am separate from the material nature and under my supervision material nature is working. So this two cases Krishna is telling that I am different. भेद। अभेद क्या है? अभेद कैसा है? कैसे मटेरियल एनर्जी और भगवान में कोई डिफरेंस नहीं भी है। एक तो डिफरेंस है बट नहीं भी है। नहीं भी क्यों है? क्योंकि मटेरियल नेचर प्रकृति किसकी एनर्जी है? भगवान की एनर्जी है। भगवान का ही एनर्जी। भगवान का ही एनर्जी है। और ये भगवान क्या बोलते हैं? मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति नहा, भगवद गीता चैप्टर नंबर 9 टेक्स्ट नंबर 4 में। मया ततम, मैं इस पूरे दुनिया में हूं अपनी एनर्जी के रूप में हूं। कृष्णा इज अ पर्सन, ही रिसाइड्स और ही कंट्रोल्स और ही इज प्रेजेंट थ्रू आउट द होल यूनिवर्स क्रिएशन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो इन दैट सेंस कैन आई से कृष्णा भी इधर पे है मेरे रूम में? हाँ है, अपनी एनर्जी के रूम में है, रूप में। तो दिस इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एनर्जी, अभेद। और भेद क्या हो गया? कि भगवान बोल रहे मैं मटेरियल नेचर को चला रहा हूं। तो ये अचिंत्य है। अचिंत्य मतलब कोई बोलेगा प्रभु जी ये तो कंफ्यूजन हो गया, भगवान अलग है कि नहीं है, इसीलिए हम अलग है कि अचिंत्य नहीं। अचिंत्य बोलते हैं। साइमल्टेनियसली कृष्णा इज वन एंड कृष्णा इज डिफरेंट फ्रॉम मटेरियल। तो ये हो गया भगवान और प्रकृति। नेक्स्ट, भागो प्रकृति और जीव, इसमें भेद अभेद बताना है। किस तरह प्रकृति और जो जीव है, लिविंग एंटिटी एंड मटेरियल नेचर, दे आर भेद एंड अभेद बोथ। हाउ कैन वी टेल? अभी आपको समझ आ रहा है क्या कैसे आंसर बताना है? टेक्निकल हुआ। ओके, तो भेद क्या है पहले बताइए मुझ प्रभु, में। लिविंग एंटिटी और प्रकृति में क्या अंतर है? प्रभु क्या हम ये बोल सकते हैं कि प्रकृति जो है, जैसे श्रीनिधर प्रभु जी ने कहा था, मैटर से बना हुआ है, और हम लोग बिलोंग करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। यस, वी आर स्पिरिचुअल स्पार्क्स ऑफ कृष्ण। कृष्ण क्या बोलते हैं? ममई वामसो जीवलोके जीव भूत सनातन, हम सनातन हैं, हम भगवान के अंश हैं। करेक्ट। और प्रकृति क्या है? मैटर है, जड़ है, मेड अप ऑफ अर्थ वाटर फायर एयर ईथर। तो भूमि रपो नलो वायु कम मनोर बुद्धि रेवच। तो अगेन, अच्छा अभेद क्या है? ये तो भेद हो गया, वो मैटर है, हम स्पिरिट हैं। हम में और प्रकृति में सिमिलैरिटी क्या है? वननेस क्या है? Because we both are part of the God.
nahi, something else. Uh, Not, don't bring God now, because we are talking about entity and material nature. So we Oh, are talking only about their relation. Our Prabhu, both are controlling each other at the same time. Okay. Yes, somebody else was telling something. our nature is divided by the Prakriti laws, Sattvagun, Rajagun, and Tamogun. So in this manner we are saying. तो सिमिलैरिटी क्या है? क्योंकि लिविंग एंटिटी इज ट्राइंग टू कंट्रोल द मटेरियल नेचर. समझ आ रहा है ना? हम एक्ट कहां से करते हैं? थ्रू मटेरियल नेचर ओनली ना. कुछ खाना है तो हाथ चाहिए, उसके लिए शरीर चाहिए, है ना? हाथ मैटर है वो. करेक्ट. सो लिविंग एंटिटी इज trying to control the material nature, although we are different in the sense of I am spiritual living entity and that is matter, but my action is through matter only, whatever I want to do. So therefore living entity is always trying to control the material nature. So that is the oneness. Okay. And that is why for most 99.9% of the people, आप कौन है? मैं शांतनु हूं. मैं शांतनु हूं ही नहीं. तो हमको लगता है कि हम सर, बिकॉज वी आर वर्किंग थ्रू द बॉडी, वी थिंक दैट वी आर द बॉडी ओनली. ओके, नेक्स्ट. तो भगवान और प्रकृति में देख लिया, प्रकृति और जीवात्मा में देख लिया. अभी भगवान और जीवात्मा में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है? ये तो बहुत इजी है. हम भगवान के अंश हैं, ये सिमिलैरिटी है. एंड डिफरेंस है कि वी हैव नॉट ऑल 6 क्वालिटीज ऑफ भगवान. नहीं 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 नहीं, गलत. आप जस्ट उल्टा बोल दिए. हम भगवान के अंश हैं, ये क्या है? ये सिमिलैरिटी है कि डिफरेंस? ये डिफरेंस है कि हम भगवान नहीं है, बट हाँ क्वालिटेटिवली हम भगवान की तरह ही हैं. हाँ, जो भगवान की करेक्ट. क्वालिटी से हम में भी है, लेकिन बहुत कम है. तो प्रभुपाद एग्जाम्पल बोलते हैं, फुल ओशन एंड 1 ड्रॉप ऑफ ओशन वाटर. दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, दोनों खारा पानी है, दोनों खट्टा है, बट क्वांटिटी में अलग है. तो क्वालिटेटिवली वी आर सेम विद गॉड, क्वांटिटेटिवली वी आर डिफरेंट. ही इज विभू, वी आर अणु. अणु मतलब वेरी स्मॉल, बट ही इज विभू. बट क्वालिटी दोनों का सेम. वो भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद से ही बने हैं, बट बहुत छोटे हैं. इज इट क्लियर? Very nice. So this is how we have, because this was important, so I gave time to discuss this. Okay. 42. Does spiritual world exist? What is the proof? Obviously we can tell about proof from our Vedic scriptures only, because material proof से आप spiritual world को proof नहीं कर सकते हैं. Okay, बताइए. कुछ भगवत गीता से कुछ याद आ रहा है कि जहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बताया गया है? Prabhu, chapter 15, sloka number 6. ना भाष्यते सूर्यो, हाँ. that चांद भी नहीं है, जो भी है मैं ही, ना इलेक्ट्रिसिटी है. That one. जहाँ देखने के लिए लाइट का जरूरत नहीं है, ऐसा एक जगह है. तद धाम परमम मम, कृष्ण बोलते हैं, ऐसा मेरा धाम है जो इस भौतिक प्रकृति से ऊपर है. तो दैट इज वन वर्स इन चैप्टर नंबर आई थिंक 15.6. वहां पे भगवान बता रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में. तो आध्यात्मिक जगत है. जैसे और एक आप लॉजिकल प्रूफ क्या देख सकते हैं, ब्रह्म संहिता में भी बताते हैं, चिंता मणि प्रकट सद्म सुकल्प वृक्ष. तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि कृष्ण जहाँ रहते हैं वहाँ चिंतामणि पेड़ हैं, कल्प वृक्ष हैं, और सुरभि गाय हैं, और सब कुछ चिन्मय है, परम आनंदमय है. तो वहां पे बता रहे हैं. और एक लॉजिक से क्या देख सकते हैं कि जैसे अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि प्रभु जी मेरे को गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है, सपोज शिवम प्रभु बोलते हैं प्रभु जी गुलाब जामुन खाना है, इस स्टेटमेंट से आप क्या मतलब निकाल सकते हैं कि शिवम प्रभु ने गुलाब जामुन पहले खाया है ना? अगर yes. खाया ही नहीं है तो मन कहाँ से कर रहा है भाई? देखा ही नहीं है. अब कोई अफ्रीकन आदमी बोलेगा क्या हमको जो है पूरन पुली खाने का मन कर रहा है? देखा ही नहीं है, ना खाया है, ना टेस्ट किया है. तो सिमिलरली आवर डिजायर टू गेट समथिंग is a proof that we have an experience of it before. Otherwise how can we ask it again?
सिमिलरली भौतिक जगत में हम अनलिमिटेड हैप्पीनेस चाहते हैं कि नहीं? कोई बोलता है कि अभी हो गया प्रभु जी हैप्पीनेस, और नहीं चाहिए। अनलिमिटेड आवर डिजायर एंड एंडेवर फॉर हैप्पीनेस। द प्रूफ इज वी हैव गॉट अनलिमिटेड हैप्पीनेस समटाइम इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हम वहां के व्यक्ति हैं जहां अनलिमिटेड हैप्पीनेस, इसीलिए यहाँ परेशान रहते हैं कि मिल क्यों नहीं रहा, मिल क्यों नहीं रहा, मिल क्यों। जैसे फिश आउट ऑफ वाटर, देखा है मछली, वो पानी से निकल जाएगा, थड़पड़ाता रहेगा क्योंकि उसको बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है। इज इट क्लियर? Mhm. Okay, so next, okay, oh sorry, I have, it's almost 15 है एक्चुअली। मेरा एक 12 बजे से इम्पोर्टेंट मीटिंग है ऑफिस का, तो इसीलिए हम क्लास को थोड़ा आज इधर ही एंड कर देते हैं। आप लोग थोड़ा आगे और पढ़ सकते हैं, बिकॉज 10-15 मिनट टाइम और थोड़ा देके जितना क्वेश्चन हो सके। मेरा बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे को सब अरेंज करना है उसके लिए, लैपटॉप ये सब। तो हम नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ओके, मैं टाइम नहीं देखा। ओके, विल एंड इट हियर ओनली। यू कैन थोड़ा और 2-4 क्वेश्चन अगर आप लोग को करना है आज अपने से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है। प्रभुपाद की जय। जय। थैंक यू प्रभु जी। Thank you, हरे Prabhu. कृष्ण। Right.